So, a very good afternoon to all of you. I welcome you all on behalf of Divine. We at Divine are conducting special sessions for people who are, for students who are passionate about judicial systems and judiciary and somewhere want to enter into that sphere. So, I have prepared analysis of previous year papers so that you people can firstly know that what is the syllabus that we have right now जो हमारे different states के लिए syllabus क्या है. Secondly, there are certain rules जो हम एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं. ठीक है. Then probably I'll also tell you how you are going to prepare for the आपकी basic strategy क्या होनी चाहिए to prepare for the services for the exams. And of course I'm going to discuss different stages of the exam which I'm sure you must be knowing, but I'm going to discuss it in a way जो आपके साथ शायद पहले कभी किसी ने discuss नहीं किया होगा. So, and of course, I'll welcome all your questions. I'll answer your queries. But एक बारी हम अपना session start करते हैं. So, it is going to be syllabus discussion. It is going to be a full-fledged session जो आपको initially चाहिए होता है अपना एक map बनाने के लिए, अपना एक route तय करने के लिए. All right. So, हम basically I'm going to discuss हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान इन सब का सिलेबस डिस्कस करूंगी so that you people know कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है एंड आपका टारगेट स्टेट कौन सा होना चाहिए और अगर आपका टारगेट स्टेट है तो उसके टारगेट सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए. Right? So this is the syllabus of Haryana Judicial Services direct from the notification. And since you people are still in colleges, I don't know if you people know that abhi bhi Haryana ka paper is due. Most probably the tentative date is 3rd March, but it is tentative as of now. So हम ये देखते हैं. Just a minute. स्लाइड निकाल लूं मैं. व्हाइट बोर्ड. So yes, हमारा एग्जाम हरियाणा का दिस इज द नोटिफिकेशन. पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्टेजेस जो हमारे एग्जाम में होती हैं. और एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस बेसिकली. एक होता है हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, एक होता है मेंस एग्जामिनेशन एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज इंटरव्यू. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेज जो हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की होती है, सिलेबस हमारा इन दी मेंस फॉर्म ही दिया गया होता है बट हमारे मेंस में लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा होती हैं वेयर एज इन प्री एग्जामिनेशन हमारी लैंग्वेजेस नहीं होती हैं एक्सेप्ट बार्ड फ्यू स्टेट्स वहां पर लैंग्वेज भी आती है. सो मैं आपको पेपर मेंस के बेसिस पे भी डिस्कस करूंगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑल्सो. Preliminary examination में there is no such division as civil law 1, 2 or 3.
Students, I would like to take 2 minutes because I think there's some technical issue which is going on. Just give me 2 minutes and we'll resume the session. Just 2 minutes. Sorry for the inconvenience. So we were discussing the syllabus जो हमने for different states देखना है. So the first and the foremost being Haryana. Like I said, Haryana की vacancy निकली हुई है and the tentative date for pre-examination is 3rd March. So we will first look at the syllabus of Haryana Judicial Services and then pre-mains and उसका analysis करेंगे. Like I said, जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें देयर इज नो सच डिवीजन एज पेपर 1, 2 एंड 3, whereas हमारा मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वहां पर देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन जो हमारे 5 एग्जाम्स होते हैं. उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. एज ऑफ नाउ हम सिलेबस देखते हैं. सो द फर्स्ट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है, जो हमारा सीपीसी जैसे हम कहते हैं, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, Indian Contract Act, Indian Partnership Act, Sale of Goods Act, Specific Relief Act, Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act and Indian Evidence Act. ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक टिक्यूलियर सा फीचर दिखाऊं यहाँ पर. सो आप क्रिमिनल लॉ के पेपर में भी इंडियन एविडेंस एक्ट पाएंगे. ठीक है, सो जब हमारा मेंस होता है तब हम सिविल लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट का सिविल एस्पेक्ट रेडी करके जाते हैं एंड जब हमारा क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है तो हम एविडेंस एक्ट का क्रिमिनल एस्पेक्ट प्रिपेयर करके जाते हैं. बट अगेन लाइक आई सेड देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन इन हमारा प्री का एग्जामिनेशन. देयरफॉर ये सिर्फ मेंस के लिए है. तो अगर हम देखें तो 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं. हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन. 5 सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर हैं. आईपीसी एंड सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट अगेन रेपिटेटिव. तो हमारे इन ऑल 15 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है. प्री में हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स हमारे पास पंजाब एंड हरियाणा में पॉलिटी भी पूछा जाता है एंड करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, एज इन जीके पूछी जाती है, विच इंक्लूड्स बोथ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके एज वेल. ठीक है, हम आते हैं अपने एग्जाम के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एनालिसिस. अगर आप देखें तो देयर आर टोटल 125 क्वेश्चंस. 125 क्वेश्चंस होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है. ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है एंड एवरी क्वेश्चन is of 4 marks. Every question carries 4 marks and let me tell you that is very huge. आपके एग्जाम्स में, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में, चाहे मेंस में, फॉर दैट मैटर इंटरव्यू ऑल्सो, पॉइंट से फर्क पड़ता है, राइट. सो द टोटल जो आपका पेपर होता है दैट इज ऑफ 500 मार्क्स एंड ये वाली बात जो होती है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपकी 0.80 नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, विच मीन्स दैट यू लूज 4 मार्क्स तो सीधा ही गए, 0.80 भी कटेंगे. सो फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं यू विल लूज 4.80 एक तरीके से. ठीक है, however there is no negative marking for unattempted and unanswered questions, but इसको भी इन्होंने इस बारी इस नोटिफिकेशन में विद अ ट्विस्ट डाला है. जनरली हमारी ये जो हम करते हैं दैट इज ऑन OMR शीट. ठीक है, OMR शीट क्या होती है? फॉर एवरी आंसर आपको
यहाँ पे राउंड्स होते हैं, दैट ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी एंड ये डी. सो यू हैव टू एनसर्कल द करेक्ट वन. ठीक है, इसकी स्कैनिंग होती है, जो आपकी चेकिंग होती है स्कैनिंग के थ्रू होती है, सो मशीन पिकअप करती है ये. सो फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन एज पर योर नॉलेज. अब क्या किया है हरियाणा में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्टेट, स्पेसिफिकली अबाउट हरियाणा. उन्होंने क्या किया है, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर कंसेप्ट जो उन्होंने इस बार एडीए में भी रखा था. उन्होंने एक ई कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है. एक उन्होंने ई कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है. अब ये कॉलम क्यों इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने कहा, फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मार्क ई एज योर ऑप्शन. इनसर्कल, डार्कन करो ई को, फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. ठीक है, फर्दर इन्होंने लिखा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एनसर्कल ई ऑप्शन फॉर एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू मार्क इट इन नेगेटिव. ठीक है, फिर एक और क्लॉज इन्होंने इसमें डाल दिया, दैट इफ 10% of 125 which means 12.5, तो अगर आप 13 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड एंड अनएनसर्कल्ड छोड़ देते हो, दैट इज यू डू नॉट डार्कन एनी सर्कल, देन इन दैट केस आपका पेपर ही स्क्रैप कर देंगे. दे आर गोइंग टू रिजेक्ट योर एग्जाम शीट. ठीक है, तो ये है, इन्होंने एक नया क्लॉज डाला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पेपर रिजेक्ट करने तक की प्रोविजन बना दी है इन्होंने, दैट टू अटेम्प्टेड पेपर, कि अगर आप 13 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड एंड ये डार्कन नहीं करके आते, देन दे आर गोइंग टू स्क्रैप योर पेपर. नेक्स्ट इज, to be shortlisted for mains examination, a candidate has to secure the cut-off marks. आपको कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, विच वेरीज अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, लास्ट एग्जामिनेशन की कट ऑफ फॉर हरियाणा वाज 356. ठीक है, 356.6 ये थी कट ऑफ, एंड इस बारी की एग्जामिनेशन में इट इज गोइंग टू गो इवन हायर, एंड आई एम श्योर जब आप लोगों की बारी आएगी देन इट इज गोइंग टू टच 380 समवेयर. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. तैयारी अपनी उस तरीके से रखनी है कि आप, जो लोग इतने साल से पेपर देते आ रहे हैं एंड परहैप्स जो क्रीमी लेयर हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दे दिए हैं, आपने उनको बीट करना है. ठीक है, इंटरव्यू इज ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है, उसके लिए आपको 550 मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं. सो इन हरियाणा जो आपका पेपर होता है फॉर मेंस से इंटरव्यू जाने के लिए आपको मिनिमम 450 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं. ठीक है, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेज में डिस्कस करूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट प्री. आप में से कोई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो अभी हमने हरियाणा के रिलेटेड डिस्कस किया, आप पूछ सकते हैं. ओके जी, तो आई रियली वुड वांट दिस सेशन टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. जहां पर आपके डाउट्स आए प्लीज पूछिए मुझसे. आई माइट नॉट सी इट दैट टाइम, बट मैं लेटर ऑन आई एम गोइंग टू एड्रेस इट. ठीक है, सो हम आगे चलते हैं. ये कुछ स्कीम है ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट फॉर एवरी इन एवरी पेपर हमारे प्री का. सो अगर आप देखें, दिस इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एनालिसिस. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के 10 to 12 क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट. तो अगर आप देखें तो दिस फॉर्म्स अ गुड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. 10 से 12 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन में से सीधा सीपीसी में से ही आ रहे हैं, एंड अगर आप वेटेज देखें तो इट इज 40 to 48 मार्क्स, विच इज ह्यूज, है ना.
पंजाब कोर्ट्स एक्ट के 102 क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस, पार्टनरशिप 3 to 4, अगेन सोगा के भी इतने ही आते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ भी, एविडेंस एक्ट के अगेन 10 to 12 क्वेश्चंस। तो अगर हम देखें तो हमारी एक सीपीसी की वेटेज और एक हमारी एविडेंस एक्ट की वेटेज काफी अच्छी है, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन दैट हमने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स तैयार करके जाने हैं। यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम लाइक दिस। दिस यूज्ड टू हैपन बिफोर 2012। वहां पर हम ये सब कर सकते थे कि हम एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाएं ताकि हम उतना स्कोर कर सकें जितना हमारा प्रीलिमिनरी कट ऑफ है। अगेन आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके कहीं पे भी ऐड नहीं होते हैं। इट इज जस्ट अ स्कैनिंग एग्जाम, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको। द मार्क्स आर नो वेयर एडेड इन दी मेंस और या आपकी मेरिट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी बाकी सब्जेक्ट्स पे आते हैं। हिंदू लॉ, अगेन 14 to 15 क्वेश्चंस। अब हिंदू लॉ ना सिंप्लिसिटर हिंदू लॉ नहीं होता है। हिंदू लॉ में हमारा क्या क्या आता है, आई एम श्योर आप लोगों की बैराक्स में होगा। एक आता है HMA, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट, एक आता है HSA, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक आता है HMGA, हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एंड एक आता है HAMA, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सो ये 4 एक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनमें से यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 14 to 15 क्वेश्चंस, एंड ये बहुत आसान होता है। इनफैक्ट अगर आप लॉ को उस तरीके से पढ़े ना, you will have to fall in love with law अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है, एंड इफ यू स्टडी इन दैट वे बहुत आसान है, ठीक है। देन मुस्लिम लॉ में आपको यू गेट 3 to 4 क्वेश्चंस। मुस्लिम लॉ बेसिकली हमारा अनकोडिफाइड है, बट देर आर सर्टेन एक्ट्स जो हमारी कोडिफिकेशन हो रखी है, एंड 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे मोहम्मदन लॉ मुस्लिम लॉ में से आते हैं। कस्टमरी लॉ 1 to 2 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट 3 to 4, रजिस्ट्रेशन अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस, IPC 13 to 14 questions, CRPC 17 to 18 questions, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके 9 से 10 क्वेश्चन आराम से आते हैं, ठीक है। सो ये आता है आपका एग्जामिनेशन का स्कीम। लास्ट के हमने ये कुछ पार्ट्स हैं, इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, जिनके ऑल टुगेदर 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। सो अगर आपने देखा तो ये लास्ट के जो 30 क्वेश्चंस है ना, वो इन्हीं स्फीयर में से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। सो अपार्ट फ्रॉम लॉ, सिर्फ लॉ नहीं करना, ये जो आपके करंट अफेयर्स एंड जीके है ना, ये आपको दिलाती है एज, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए शायद लॉ सब अच्छे से करके जाते हैं, बट करंट अफेयर्स इज दी एरिया जो आपको एक एज दिलवाता है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा में ये मेंस में नहीं आता, बट दिल्ली में ये मेंस में भी आता है। देयर इज अ सेपरेट पेपर फॉर जीके एंड लीगल अफेयर्स, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, प्लीज रेफर न्यूज़पेपर्स, प्लीज मेक इट अ हैबिट दैट यू रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ही इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम में, and believe me when I say this, I have been a judicial aspirant, I have given number of exams, and every time newspaper has helped me, ठीक है। अब हम आते हैं मेंस की सब्जेक्ट की एलोकेशन पे। दिस इज अभी तक सारा कौन सा चल रहा है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा चल रहा है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका 50 मार्क्स का आता है। पंजाब कोर्ट्स एक्ट 5 to 10 मार्क्स आप लगा लो, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, देर इज नो स्ट्रिक्ट रूल कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में होता है। देर इज नो सेट पैटर्न, जनरली 10 मार्कर का क्वेश्चन होता है एवरी मैं अगर आपको थोड़ा सा स्कीम बताऊं, सो ऐसा होता है दैट देर इज क्वेश्चन नंबर 1 और उसके
4 पार्ट्स होते हैं. दिस इज द जनरल फॉर्मेट. Not in every case is not going to be true, but this is how it works, and every question is of 10 marks, and एक question होता है 40 marks का. ठीक है. इस एक क्वेश्चन को करने के लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमारे पास 36 मिनट्स होते हैं, which means 9 minutes each for each question, for each part. ठीक है. दिस इज दी करेक्ट हमारी जो डिविजन ऑफ टाइम है. एंड डिविजन ऑफ टाइम जो टाइम है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल प्रिपेयरिंग या वाइल राइटिंग योर मेंस का एग्जामिनेशन. So every question should be attempted within 9 minutes. अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना भी होता है, क्वेश्चन को एनालाइज भी करना होता है दिमाग में कि क्या क्या लिखना है. देन आप लोगों ने वो लिखना भी होता है. एंड चलो एक और फन फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में बेयर एक्ट की कॉपीज मिलती हैं. ठीक है. नॉट द वंस जो हमारे पास होती है यूनिवर्सल वाली, विदाउट कमेंट, सिर्फ बेयर एक्ट मिलती है, बहुत अच्छे से कंपाइल की गई. ठीक है. तो वो हमको बेयर एक्ट दी जाती हैं. बट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इफ यू आर इन टच विद एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज, कि टाइम ही नहीं मिलता खोलने का बेयर एक्ट. बट ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रॉपर डिविजन की हुई है टाइम की, एंड इफ यू आर अबाइडिंग बाय दैट टाइम डिविजन, आपको टाइम मिलता है. ठीक है. मैंने खुद खोली हुई है. तो 9 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना है. अब यहाँ पर एक और चीज, सिंस यू पीपल आर सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हमारे को क्या आदत होती है, हमारे को एक क्वेश्चन के लिए वी हैव टू राइट ऑफ कोर्स विद कंटेंट 5 to 6 पेजेस हमें लिखने होते हैं. बट जुडिशरी में ऐसा नहीं होता. फॉर एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन आपको 2 शीट्स भरनी होती है. दैट इज ऑल. एंड ये आपको 9 मिनट में लिखना होता है, विद हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, विद गुड कंटेंट, एंड विद गुड डिविजन ऑफ, या जिसे आप कहते हैं तरीके से आपको पूरा डिफ्रेंशिएट करना होता है कि किसको इंट्रोडक्शन लिखें, किसको बॉडी लिखें, एंड किसको कंक्लूजन लिखें. अगेन आपके मेंस के आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं. एक इंट्रोडक्शन, एक उसका बॉडी जो आपसे पूछा गया है, एंड देन कंक्लूजन. These 3 are the important parts जो आपके हर एक आंसर में होने चाहिए to fetch you good marks in your mains examination. ठीक है. So this is how we write हमारा मेंस का आंसर. You do not have to write बहुत ज्यादा. 2 pages are sufficient for a 10 marker, and proportionately आप बढ़ा एंड घटा सकते हो. लाइक फॉर अ 5 मार्कर आपको सिर्फ 1 पेज लिखने की जरूरत है. फॉर अ 15 मार्कर आपको 3 पेजेस लिखने की जरूरत है. फॉर अ 20 मार्कर यू हैव टू राइट 4 पेजेस. तो वो उस तरीके से चलता रहता है. सो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, कि क्योंकि हमको सेमेस्टर में इस चीज की आदत नहीं होती है. Students, I hope I am clear to you. Any question regarding this, you can ask me. चलिए अब हम आते हैं मार्क्स पे. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 50 मार्क्स. पंजाब कोर्ट्स एक्ट, लाइक आई सेड, 5 to 10 मार्क्स. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स. ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. डायरेक्टली शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स का आता है, बट इनडायरेक्टली इन तीनों में आता है. पार्टनरशिप, सोगा एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये इन तीनों से लिंक्ड है.
तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट का एस्पेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। सो आपका बेस ऑफ ऑल दीज लॉज इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। कहीं ना कहीं वो मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें डाल देते हैं, ठीक है। देन इज द एविडेंस एक्ट, रेंट एक्ट। एविडेंस एक्ट को अगर आप देखें तो सिविल लॉ 1 में इट इज 30 मार्क्स। जैसे मैंने कहा, सिविल लॉ 1 में हम सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट का सिविल एस्पेक्ट पढ़ के जाते हैं, ठीक है। रेंट एक्ट इज 15 मार्क्स। लाइक आई सेड, दिस इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज हिंदू लॉ, a good amount of 105 marks. हिंदू लॉ की इतनी वेटेज है, एंड आई टेल यू पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हिंदू लॉ इज द मोस्ट स्कोरिंग। एंड ऑफ कोर्स सिविल लॉ 2 में आप अगर लास्ट ईयर के रिजल्ट्स निकाल कर देखें ना, सिविल लॉ 2 में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स दिखेंगे, मेजरली बिकॉज ऑफ हिंदू लॉ। एक तो इजी है, एंड वन ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर इज, बच्चे ना बार बार बोलते हैं कि अब देखो सेमेस्टर्स में तो हम इतने केसेस शायद नहीं याद करते हैं, बट जुडिशरी में आप अपने पेपर में जितने ज्यादा केस लॉज लिखेंगे, जितने प्रॉपरली उनको हाईलाइट करके लिखेंगे, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड हिंदू लॉ इज वन सच सब्जेक्ट जहां पर आप अनलिमिटेड केसेस लिख सकते हो, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड केसेस देयर। एंड जितने ज्यादा केसेस लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए हिंदू लॉ इज अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। सिविल लॉ 1 में क्या होता है कि देर आर 8 सब्जेक्ट्स जो बहुत मेजर हैं हमारे पास ना, बिकॉज हमारा फर्स्ट मेंस होता है, तो वो रिदम शायद कभी कभी नहीं बन पाता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि टाइम डिविजन अगर आपने कर रखी है ना, देन आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप जिस दिन भी अपना मेंस का पेपर देने बैठोगे ना, एक्चुअली दिस वाज समथिंग व्हिच वाज टोल्ड टू मी बाय माय सीनियर, कि आपने अपना पेपर कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। अगर आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया ना, यू आर आउट ऑफ द रेस। आप जब तक पेपर कंप्लीट नहीं करोगे, वो सारा पोर्शन जो बाकियों ने कंप्लीट किया है, आपने तो ऑलरेडी मिस कर दिया है ना। सो दैट इज वाई टाइम डिविजन इज इम्पॉर्टेंट, साथ में राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी, साथ में गुड कंटेंट, लैंडमार्क एंड लेटेस्ट जजमेंट्स सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ थे, हिंदू लॉ मेजॉरिटी ऑफ सिविल लॉ 2 वही बनता है। 200 के मार्क्स के पेपर में से 105 नंबर तो हिंदू लॉ के ही आ गए। मुस्लिम लॉ 50 मार्क्स, ठीक है। कस्टमरी लॉ में पिछली बारी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर जनरली आता भी है तो इट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए। लिमिटेशन एक्ट 35 मार्क्स, रजिस्ट्रेशन एक्ट 10 मार्क्स। Now let us come to criminal law. क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले है हमारा आईपीसी। सो लास्ट ईयर आईपीसी में से जो क्वेश्चंस आए थे, दैट वर बेसिकली जो आपका वेटेज था, दैट वाज 65 मार्क्स। सीआरपीसी अगर आप देखो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का सीआरपीसी। एंड अगेन एविडेंस एक्ट 55 मार्क्स। तो अगर आप देखो सिविल लॉ 1 में हमारा एविडेंस एक्ट आया था 30 मार्क्स का, एंड क्रिमिनल लॉ में आया 55 मार्क्स। तो अगर आप टोटल करें तो 85 मार्क्स का तो एविडेंस एक्ट भी आता है हमारा। तो ये वाले सारे पार्ट्स जो हैं ये मेजर एंड इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, देयर इज नो फिक्स्ड वो डिविजन ऑफ मार्क्स, दिस कैन वेरी, बट मेजरली यही रहता है। 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे ये 70 मार्क्स का आ जाए, ये भी 70, ये भी 70, इस तरीके से ऐसी डिविजन हो जाए, ठीक है। उतना हो सकता है, बट मेजर चंक हमारा यही रहता है। अब हम आते हैं मेंस के नेक्स्ट पेपर में। अच्छा, अब ये पेपर्स की डिवीजन होती कैसे है, ये आपके पेपर शुरू होते हैं फ्राइडे को।
फ्राइडे को आपका पेपर शुरू होता है। पहला पेपर होता है आपका 2 to 5। 2 to 5 आपका पहला पेपर होता है, दैट इज ऑफ सिविल लॉ 1। ठीक है, पहले दिन आपका एक ही पेपर होता है। फिर आता है सैटरडे। सैटरडे को आपका दूसरा पेपर होता है, दैट इज सिविल लॉ 2, और ये आपका होता है 9 AM to 12 noon। ठीक है, एंड सैटरडे को ही इवनिंग में आपका दूसरा पेपर होता है, दैट इज इंग्लिश। वो होता है आपका 2 to 5 PM। क्लियर है? एंड आई मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस, वेरी डिफिकल्ट। वो दिन आपकी जिंदगी के बहुत ही, वो 3 दिन दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बिजी, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले टाइम होता है, वेयर यू आर नॉट इवन अवेयर कि चल क्या रहा है, बस आप पेपर दे रहे हो, आप लिख रहे हो, बस यू आर स्टडिंग एंड यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, बट मुझे लगता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है जब हम मेंस दे रहे होते हैं। तीसरा दिन आपका होता है संडे को, जहां पर आपका होता है क्रिमिनल लॉ का पेपर। अगेन 9 to 12 आपका पेपर होता है, एंड देन अगेन इवनिंग में संडे को 2 to 5 आपका हिंदी का पेपर होता है। सो इस तरीके से होते हैं हमारे मेंस के एग्जाम्स। ठीक है, एंड ये वाले 3 घंटे, ये और ये तो नॉन स्टॉप आप लिख रहे होते हो। लैंग्वेजेस में हमारे पास टाइम मिल जाता है, हमारा पेपर 2 घंटे में आराम से खत्म हो जाता है, तो लैंग्वेजेस में हमारे पास टाइम मिल जाता है दैट हम आराम से भी लिखें एंड अच्छे से भी लिखें। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पेपर्स आर कंडक्टेड। अब ये है इंग्लिश का सिलेबस। सबसे पहला आता है एसे। ठीक है, मैं आई विल गेट यू बैक, जो हम न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे थे, so I'm again going to bring you on newspapers। एसेज जो है ना, उनकी सेट एक डिफरेंशिएशन है। एक ऐसे वो पूछते हैं करंट टॉपिक में से, ठीक है, एक वो किसी सोशल इशू पे जो प्रेवलेंट है उस पे पूछते हैं, एक इशू वुमेन से रिलेटेड होता ही होता है, एंड एक कोई सेइंग या प्रोवर्ब पे वो ऐसे डाल देते हैं। तो ये उनकी सेट डिफरेंशिएशन है जो वो हमेशा पेपर में फॉलो करते ही करते हैं। नाउ व्हेन आई से न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो है वो आपके एटलीस्ट ये 3 एरियाज के टॉपिक जो है प्रिपेयर करने में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी इन पे भी आ जाता है। व्हेन आई से न्यूज़पेपर्स, आप एडिटोरियल तो स्किप ही मत करो। एडिटोरियल पढ़ो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो न्यूज़पेपर आपको पसंद आ रहा है, आई एम गिविंग यू दी ऑप्शंस। आप बेसिक ट्रिब्यून उठा सकते हैं, द ट्रिब्यून। ठीक है, द ट्रिब्यून का एक फायदा और है, द ट्रिब्यून जो है ना आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आज जो एडिटोरियल इंग्लिश में आया ना, कल उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में आती है, और वो आपकी जस्ट मिनट गाइस। Just a minute।
वो आपका अनुवाद में जो आपका पेपर आता है, ये देखिए, ये आपका जो अनुवाद है उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है हमारा जो वो ट्रांसलेशन वाला मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो आपकी एडिटोरियल है वो कभी कभी हिंदी में नेक्स्ट डे ट्रांसलेट होके आया होता है, तो ये हमारा हिंदी के पेपर के लिए भी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। कमिंग बैक टू हमारा इंग्लिश का, जहां पर हम बात कर रहे थे एसे की, देन इज ये आपका ऐसे आ गया, ये आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप एक ऐसा ऐसे लिखो जो आपने ओरिजिनली न्यूज़पेपर से या अपनी नॉलेज से, या बिकॉज आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो यू हैव सम सब्सटेंस इन योर हेड रिगार्डिंग दैट टॉपिक, तो वो आपका इजी हो जाता है लिखने के लिए। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। प्रेसी इज बेसिकली कंप्रेस करना, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, आप उसको छोटा करके लिखना होता है। सो जितने भी टोटल वर्ड्स होते हैं उस प्रेसी के, आपने उसका 1/3 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स। कॉम्प्रीहेंशन, अगेन आपको एक पैसेज दिया जाता है एंड देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपने उनका आंसर देना होता है, like we have been doing in our English subject. Corrections 25 मार्क्स। तो जो हमारे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो सारे भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, इनके काफी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं फिर से बोलना चाहूंगी, वंस यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड यू बिल्ड दैट हैबिट, आप देखेंगे कि आपकी आधी ग्रामर तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आपका इंग्लिश का पेपर, अगेन विच इज ऑफ 200 मार्क्स। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, लॉ में आपको फिर भी अच्छे मार्क्स दे देते हैं। लैंग्वेजेस हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट दीज डेज, आपको वो लैंग्वेज को बहुत ही स्क्रूटनी से देखते हैं। इट इज नो लॉन्गर सेम जो हमारा लाइक ऐसे 2012 तक होता था, जहां पर लैंग्वेजेस को लेट गो कर दिया जाता था, इजी मार्किंग होती थी, बट अब लैंग्वेजेस में ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। सो once you have thought that you're going to appear, make sure that from day one you work on your languages. आप ऐसा ना करें कि आप languages को बोले कि जब पेपर आएगा तब करेंगे, नहीं, that is not going to help you, that is not going to be sufficient। आपको every day you will have to work, मतलब this is what I suggest to my student that उठने का पहला घंटा, उठने के बाद का पहला घंटा devoted to your newspapers, पढ़ो उसको। एंड अगेन इसका एक और चीज है, इट ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपको ना इंटरव्यू के टाइम पे भी होता है, वो मैं आपको चलो इंटरव्यू की स्टेज पे जब हम आते हैं तब बात करूंगी। सो ये है आपका इंग्लिश का पेपर, ये है आपका हिंदी का पेपर। पहला मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज ट्रांसलेशन, अनुवाद जिसको हम कहते हैं। सो आपको इंग्लिश में पैसेज दिया जाता है, आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देन इज गद्यांश एंड पद्यांश। बेसिकली क्या होता है, आपको एक पोएम दे दी जाती है, पोएम का जैसे हम कहते हैं कि आपको व्याख्या करनी है, सारांश सहित व्याख्या, तो ये गद्यांश और पद्यांश में वही करना होता है। गद्यांश में एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको सारांश सहित व्याख्या करनी होती है, एंड पद्यांश में पोएम होती है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अगर पोएम का नाम भी पता है एंड पोएट का नाम भी पता है तो यू गेट दोज एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स, बट अदरवाइज अगर नहीं भी पता है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो पद्यांश आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, तुलसीदास, कबीर दास, ठीक है, तो इन सब के दोहे आएंगे आपको, नॉट ऑलवेज बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। देन इज शुद्ध अशुद्ध, वही करेक्शंस, ये आपको वर्ड्स के फॉर्म में भी आ सकता है, ये आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में भी आ सकता है। देन इज मुहावरे एंड निबंध, ऐसे। तो ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ पर 30 मार्क्स का ऐसे है, वेराज इन इंग्लिश कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर ऐसेज
इन हिंदी में भी सेम होता है. देर आर सर्टन एरियाज जो उन्होंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं एंड उसी में से ही आपको चूज करना होता है. ठीक है जी. नाउ दिस इज द पेपर जो हमारा पंजाब का है. ये आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन में से आपका अगेन जो हमने वो ले रखा है स्क्रीनशॉट. सो सारा सिलेबस सेम है. देयर इज नथिंग विच इज एज सच डिफरेंट एक्सेप्ट ये ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो कि एक्चुअली सेम ही है. पहले जो हरियाणा पे भी सेम रेंट एक्ट लगता था जो अब पंजाब पे लगता है. सॉरी पंजाब वाला ही हरियाणा पे भी लगता था बट अब उन्होंने सर्टेन चेंजेस कर दिए हैं. एक्सेप्ट दैट अगर आप देखें तो सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है. हमारे हरियाणा में हिंदी पूछी जाती है वेयर एज इन पंजाब इट इज पंजाबी. तो ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन साथ में लिखी होती हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो 10 टाइम्स बच्चे लेते हैं ऑफ द पोस्ट. उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है एंड मेंस से इंटरव्यू में 3 टाइम्स ऑफ दी स्टूडेंट्स लेते हैं. ठीक है. तभी वो डिसाइड होती है. चलिए अगेन यहाँ पर भी सेम है. 200 मार्क्स का पेपर है. 500 मार्क्स टोटल है. सॉरी 2 आवर्स का पेपर है. 500 मार्क्स है. 0.80 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन. नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. पंजाब में अभी ऐसा ट्रेंड नहीं आया जो मैंने आपको हरियाणा के बारे में बताया है. 393 आपके क्वेश्चंस होते हैं एंड इंटरव्यू इज ऑफ 100 मार्क्स. हरियाणा में इट वाज ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है. एंड यहाँ पर अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था 550 मार्क्स रिक्वायर्ड मिनिमम. तो आपको पंजाब में टू बी एबल टू बिकम अ जज आपको 525 नंबर. इफ यू आर गेटिंग 525 मार्क्स देन इन दैट केस आपका एग्जाम क्लियर है चाहे आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं. सो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ जज इन पंजाब इज 525 मार्क्स and in Haryana it is 550 marks. ठीक है. Just a minute. नेक्स्ट ये आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न है. ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न पे हमारा पंजाब एंड हरियाणा का पेपर होता है. अगर आप देखें तो सीपीसी 15 to 16 क्वेश्चन, कोर्ट्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एविडेंस रेंट. तो ये आपकी पैटर्न सेम चलती है. हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन, आईपीसी, सीआरपीसी. यस. यहाँ पर पंजाब में भी हैव एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज नॉट देयर इन आपका हरियाणा का सिलेबस. सो दिस इज वन एक्ट विच इज डिफरेंट विच इज एक्स्ट्रा फ्रॉम आपकी हरियाणा की एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल हिस्ट्री, ये करंट अफेयर्स ये सेम है. ठीक है. तो ये मिनिमाइज करना है. ये वो नहीं हो रहा है. मैं गूगल वाली विंडो नहीं देख पा रही हूँ.
नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसको कैसे बंद करूँ अब? नहीं, इसको तो हो जाएगा। मुझे वो वाली स्क्रीन चाहिए, मुझे वो गूगल वाली स्क्रीन चाहिए, ऐप वाली। वो भी कहाँ गई? Students, please just give me 2 minutes. Starting हो गया. So yes, anybody having any question regarding your Punjab and Haryana का exam, regarding any stage, चाहे preliminary है, चाहे mains है, चाहे interview है, can please ask me. No, there is no negative marking in mains examination. Only in pre-examination आपको negative marking होती है. चलिए, आपको मैं बाकी स्टेट्स के पेपर भी एटलीस्ट सिलेबस, आई विल शो यू दी सिलेबस, ताकि आप वो भी देख सके. सो दिस इज द सिलेबस फॉर हिमाचल प्रदेश. अब हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, दैट यू हैव 3 डिफरेंट पेपर्स इन योर प्री एग्जामिनेशन एज वेल. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा में यू ओनली हैव 1 प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन, बट इन हिमाचल प्रदेश देयर आर 3 पेपर्स जो आपके होते हैं. अब वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सिविल लॉ 1, वो होगा आपका सुबह 9 से 10, ठीक है. देन 10 से 12 आपकी ब्रेक होती है. फिर आता है आपका सिविल लॉ 2, विच इज फ्रॉम 12 to 1, ठीक है. देन आपकी 1 to 3 होती है ब्रेक, एंड देन आता है आपका क्रिमिनल लॉ, जो होता है आपका 3 to 4. एंड ये सारे जो आपके पेपर्स होते हैं, दे आर ऑफ 50 क्वेश्चंस ईच, एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 marks, is of 2 marks. अरे यार मैं तेरा, ठीक है, दिस इज हाउ पेपर इन हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड. एंड सबसे अच्छी बात, मैं कोई निकल करवाता देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव मार्किंग इन हिमाचल प्रदेश, तो आप आराम से करके आ सकते हैं. सामने रखा था. अब देखो, 300 मार्क्स में से अप्रॉक्स कट ऑफ इस बारी 240 तक गई है. अभी वो ना कोई आ रहे हैं, रुक जाओ. तो विच मीन्स दैट 120 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू अपेयर इन योर मेंस एग्जामिनेशन. मैं आपको अगर इसका सिलेबस दिखाऊं, तो जिस तरीके से पेपर में डिवाइडेड है सिलेबस, इसी तरीके से आपके सिविल लॉ 1, 2 आते हैं. सो पेपर 1 सिविल लॉ 1, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट. ये एक्चुअली स्टैम्प एक्ट इंडियन स्टैम्प एक्ट होती है, और आगे होता है एज एप्लीकेबल टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अब एचपी का ये है ऑफ कोर्स कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इस बारी तो उन्होंने और ऐड किए हैं. सिविल लॉ 2, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड रेंट कंट्रोल एक्ट. तो ये मेजरली हमारा फिर भी थोड़ा बहुत सेम है. दिस इज पेपर नंबर 3, क्रिमिनल लॉ, विच इज सबसे अलग एंड probably the most difficult of the lot.
IPC, CRPC, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, देन ये सारी चीजें उन्होंने इसी बारी ऐड की है। इनको ऐड करने का जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। सो बेसिकली पॉक्सो, जेजे एक्ट, डीवी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपने साथ में पढ़कर जानी होती है। एंड ये आपका जो चेंज है इन हिमाचल प्रदेश का सिलेबस, ये इसी लास्ट पेपर में आया है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। इंटरव्यू यहाँ पर 150 नंबर का होता है। मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के, बाकी स्टेट्स के सब्जेक्ट्स भी दिखाती हूँ। अगेन लाइक आई सेड, यहाँ पर हिंदी होता है हमारा हिमाचल में, ठीक है। राजस्थान का पेपर ड्यूरेशन इज ऑफ 2 hours. The preliminary examination shall be an objective type question in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for law paper and 30% shall be given to Hindi and English. मैंने आपको ये चीज कही थी, जनरली हमारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में लैंग्वेजेस नहीं आती है, बट इन राजस्थान हमारी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आती है। ये आपका 100 नंबर का होता है जिसमें से 70 मार्क्स का लॉ आता है एंड 30 मार्क्स का आपको लैंग्वेजेस पूछी जाती है, 15-15 नंबर ईच। अगेन द बेस्ट फीचर इज देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड इंटरव्यू की वेटेज भी सिर्फ 35 मार्क्स है, विच इज वेरी गुड, है ना। तो आपके मेंस के आंसर्स पे, क्वेश्चंस पे, मार्क्स पे डिपेंड करेगी आपकी सिलेक्शन मेजरली। तो ये है राजस्थान का। राजस्थान में एक और बहुत अच्छी बात है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन अपीयर इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप में से जो भी लास्ट ईयर के हैं, प्लीज कंसिडर दिस। अब हम आते हैं लास्ट अपना दिल्ली के सिलेबस पे। 200 नंबर की पेपर होता है। अभी दिल्ली का पेपर होके हटा है, बट द रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एंड इंटरव्यू भी 150 मार्क्स का होता है। सिलेबस अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का देखें, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई सेड, हमारे दिल्ली के मेंस में भी आपका जनरल नॉलेज इज अ पार्ट। इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिलेबस में अगेन देखिए आप, लैंग्वेज भी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पॉक्सो, कमर्शियल कोड्स एक्ट। तो ये सारा कुछ है जो हमारे एक्चुअली उससे डिफरेंट है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ पर दिल्ली में देयर इज दिस स्ट्राइकिंग फीचर कि आपका जो प्री एंड मेंस का सिलेबस है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, एसआरए, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देन सिविल लॉ 2 इज सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन। क्रिमिनल लॉ में आपका आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड लाइक आई सेड, आपका एक पेपर अलग से बिल्कुल होता है विच इज ऑफ जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज। इसमें 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है जनरल नॉलेज जो 100 नंबर का आता है, एंड दूसरा आता है लैंग्वेज का विच इज ऑफ 150 मार्क्स। सो इसमें क्या क्या आता है, एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग। तो ये है आपके मेजरली वाइसिनिटी वाले स्टेट्स का सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर का। एंड एट द एंड I would like to end this session with the quote, dreams don't work unless you do. So make sure that you work on it, make your dreams work and make it happen. So
Is there any question regarding all these papers जो आपने मुझसे पूछना है? हाँ जी महक जी, सिमरन जी, I know time is over, but I guess I was making sense. Thank you जी. So anybody having any question? Left कर. Time over.